seals in the last class. The Revelation chapter 6 has the 6 seals, and in the 7th chapter we have the vision of the people of God being sealed by God. And coming to chapter 8, verse 1 to 5, it is the opening of the last seal, the 7th seal. Chapter 8, verse 1 to 5 of Revelation has the last seal opening. So when the last seal was opened, when you read it in detail, what is happening there? There is a silence. This is silence for half an hour there. No noise is heard. And what is written there? I saw the 7 angels standing before God. 7 angels standing before God with 7 trumpets. 7 तुरहियों के साथ 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़ा था. अभी एक और स्वर्गदूत को दिखाई दिया. Another angel with a censer. What is a censer? Censer is a thing. क्या है? वो एक बर्तन जैसा है, उसमें गुंदरस डालकर ऐसे करते हैं ना, सेंसर बोलते हैं इसको. हिंदी में लिखा होगा. उसके हाथ में एक सेंसर था. धूप दिखाने वाला, धूप जलाने वाला वो चीज जो हाथ से ऐसे करते हैं ना, धुआं. सो उस दूसरे एंजल के हाथ में गोल्डन सेंसर था. एंड ही वाज स्टैंडिंग बाय द altar. He was standing near the altar. Altar, which is this altar? We saw an altar in the 5th seal where the souls of martyrs were crying. That was an altar of incense, which points to what is the altar of incense? It shows the prayer of the saints. It's an altar of prayer and offering of worship. So the 7 angels are standing before the Lord with 7 trumpets. Another angel is there with a censer, stood near the altar. And what is happening? He was given a great quantity of incense to offer with the prayer of all the saints on the golden altar that is before the throne. तो इनको परमेश्वर की उपस्थिति में, in the presence of God, he was given a lot of incense to burn, to offer at the altar. And the smoke of the incense with the prayers of the saints rose before God from the hand of the angel. Then the angel took the censer and filled it with fire from the altar and threw it on the earth. इधर क्या हो रहा है? This angel was given a lot of incense. Incense means धूप जलाना का जो चीज, incense. तो वो उस altar of incense में धूप जला रहा है. बहुत ज़्यादा मिला था उनके incense धूप जलाने के लिए. तो वो क्या कर रहा है? He is the smoke of the incense, उससे निकलते हुए जो धुआं, और संत लोगों की प्रार्थना के साथ किसकी ओर जा रहा है? These all are symbols. The smoke from the altar of incense is going to God along with the prayers of the saints. संत लोगों की प्रार्थना इस धूप जलाते समय जो धुआं निकलते हैं उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति, मतलब ये संत लोगों का प्रार्थना कहाँ पहुंच रहा है? परमेश्वर का उपस्थिति में. वो है सिंपल. अभी समझो ये साइलेंस क्या है? ये साइलेंस ये है, स्वर्ग का सारा आवाज बंद किया गया है. What is the noise in the heaven? What is the loud voices in the heaven? The living creatures are worshiping God. The angels are worshiping God. All the heavenly worships, all the noises in heaven is stopped for a while. For what? For the prayers of the saints to be heard.
परमेश्वर के भक्त लोगों का प्रार्थना का आवाज सुनने के लिए स्वर्ग का सारा आवाज कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का लोगों का प्रार्थना. हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्रेयर्स ऑफ द पीपल ऑफ गॉड. इवन द वर्शिप ऑफ द हेवन इज बीइंग स्टॉप्ड फॉर द गॉड टू हियर. ये नहीं स्वर्ग का सारे आवाज के कारण परमेश्वर को धरती के प्रार्थना नहीं सुनाई दे रहे, ये नहीं मतलब. पर परमेश्वर के लिए अपने लोगों का प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है. जब ये प्रार्थना का धूप उड़ रहा था, परमेश्वर बाकी सारे आवाज को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है. दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर ऑफ गॉड्स पीपल. इसलिए उधर साइलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर ऑफ गॉड्स. So when we pray, God hears it. हमारा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाता है. परमेश्वर उसको बहुत क्या है इम्पोर्टेंस देते हैं. ये समझना है. Whenever the people of God prays, all the prayers that we do in the early morning, the chapel time, in the personal prayers, all the prayers that we do sincerely in the name of Jesus, it reaches God. All the cries of His people reaches God. That's why we need to be very serious about prayer. प्रार्थना एक खेल नहीं है. ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम हमारा प्रार्थना विनतियों को रखता है. All the prayer points that we pray, we should pray in this awareness that we are placing it before the throne of God. हम प्रार्थना करते समय बहुत गंभीरता से प्रार्थना को लेना है. ये समझकर कि एक एक प्रार्थना जो हम चढ़ा रहा है हमारे सच्चे दिल से, जो क्या है हमारा जो पवित्र और सच्चे दिल से, हमारे हृदय से गहराई से आने वाला सारे प्रार्थना, परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना परमेश्वर का सिंहासन के सामने पहुंचता है. उस आदर के साथ, उस भय और आदर और गंभीरता के साथ हमारा एक एक प्रार्थना करना है. ऐसा एक समझ प्रार्थना के बारे में होना जरूरी है. सो वी नीड टू टेक आवर प्रेयर टाइम्स सीरियसली. For our eyes, you may feel that nothing is happening. This is also a normal time. No, this is not a normal time. God listens our prayers from heaven, and our prayer reaches heaven. And what happens from the altar of incense? This angel is taking the ashes, not really ashes. Whatever is burning there on the altar of incense, this angel is taking and spreading on the earth. जो स्वर्गदूत उस धूप जलाने वाला जो वेदी से जो कोयले को जो कुछ उधर जल रहा है वो निकल कर कहाँ फेंक रहा है. मीन्स as a result of the, so it is written in verse 5, then the angel took the censer and filled it with the fire from the altar and threw it on the earth. ये angel took fire from the altar, threw it on there. सेंसर में ले लिया और धरती के ऊपर फेंका. And what does this shows? You know, the fire from the altar, this shows, this has connection with the prayers of the saints. With the so after this angel threw the fire on the altar on the earth, from that time onwards the 7 trumpets are going to be blown. Means whatever is going to happen now, whatever is God going to do now after this silence, after God hearing the prayers of His saints, is a result or as an impact of the prayer of the people of. जो कुछ प्रार्थना अभी हो रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में जो प्रार्थना पहुंचा, उसके रिजल्ट के रूप में आने वाली चीजें हो रहा है. Wherever we see the prayers of the saints, in the 5th seal we saw the
we saw the prayers of the martyred souls. पांचवें सील जब खोला गया, पांचवा जो मोहर जब खोला गया, जो लोग शहीद हुआ था 6 अध्याय में, जो लोग शहीद हुआ था उनका प्रार्थना सुन रहे थे, कब तक परमेश्वर हमारे लिए कब तक आप बदला लेगा, हमें कब न्याय मिलेगा, ये प्रार्थना उधर से उठ रहा है। इधर भी संत लोगों का प्रार्थना जो सताव से होकर गुजर रहा है, इस दुनिया के सारे प्रकार के कठिनाई से होकर गुजर रहा है, उन सारे चीजों के बीच में परमेश्वर के संत लोगों का प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच रहा है, और उस प्रार्थना का जवाब के रूप में होगा जो कुछ, मतलब जो ये स्वर्गदूत फेंक रहा है, इट इज फ्रॉम द ऑल्टर ऑफ इंसेंस, इट शोज द प्रेयर ऑफ द सेंट्स। सो जो कुछ अभी आगे होने वाला है, इट इज कनेक्टेड विद द प्रेयर ऑफ द सेंट्स। इधर से जो कुछ आगे होने वाला है, जो 7 तुरहियां फूंकने वाला है, इट इज लाइक एन आंसर टू द प्रेयर ऑफ द सेंट्स। इंसिडेंट्स, I hope you got the meaning. सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? को चश्मा मिला? सही है विषय। क्या हुआ था चश्मा? ये नया? ठीक है। समझ कर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं? So, as a result of the prayers of the saints, God is doing something on the earth. He is judging the earth with 7 trumpets, in which we see earth is plagued with lot of plagues. Now we will enter into the 7 trumpets. So, first of all, we saw 7 seals. Seven seals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So when the 7th seal was opened, 7 trumpets came out of it. Seven trumpets came out of it. So here in the 7 seals we had 2 groups. First 4 are horsemen. Horsemen. What all did they represent? War and conquest.
Second, what was second? Take away the peace. Third was famine. आप लोग लिखा है, ऐसे याद दिला रहा हूँ. Not yet souls. Crying. What was in the sixth? Cosmic disorder or destruction. Seventh, seal जब खुला, seven trumpets आ गए. तो इधर क्या हो रहा है? इंसान का पाप को दिखा रहा है. जो वार है, कॉन्टेस्ट है, मेल उठा लिया जाना, ये सारा किसका पाप है? इंसान के पाप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. फैमिन और डेथ को परमेश्वर अनुमति दे रहा है, और इंसान अपने पाप और अपना बलवा के कारण जो धरती का हालत बहुत बुरा हो रहा, उसी की वजह से संत लोग भी कष्ट उठा रहा है, पूरा सिस्टम खराब हो रहा है. So that's the picture of seven seals. But here, what happens is God is responding with judgments. सेवन सील्स में परमेश्वर दुनिया को अपने रास्ता में जाने के लिए छोड़ रहा है, अपना पाप में जीने के लिए छोड़ रहा है, और उस पाप की समाप्ति की ओर जाने के लिए छोड़ रहा है, ताकि उन लोग के पाप के कारण, बलवा के कारण अपने आप में उसका सजा पाए. God is loosening, God is relieving the people, releasing the people so that their sins may multiply, because the human beings are rebellious to God. So all the forces of wickedness are loosened to take its way and grow, and the humans may experience its consequences. इसका फल उन लोग अपने आप में प्राप्त करें. पर फिर संत लोगों का प्रार्थना दिखा रहा है. इसी के साथ साथ क्या भी हो रहा है? परमेश्वर का क्रोध भी, ये भी एक परमेश्वर का क्रोध है, एक तरीके से उनको छोड़ रहा है उनके पाप के लिए. इधर परमेश्वर क्या कर रहा है? God is responding with judgment. All the trumpets, whenever the six trumpets, seventh trumpet is different like this. So here there are two groups. There are first four trumpets and the last three trumpets. Two groups are there like this. So all are God's judgment on the nature. All the four, God's judgment on the nature. धरती के ऊपर, समुद्र के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर का न्याय होते हुए देखते हैं. So before that, what is these seven trumpets? What is the meaning of these trumpets? Turhi. So in Old Testament, where we see this trumpet? याद है पुराने में कहाँ तुर्ही के बारे में? हाँ? Where also we see about trumpets in Old Testament? ये बाइबल में कहीं देखा है? तुर्ही के बारे में सुना है? कहाँ? हाँ? क्या? सर वो जब यरीहो की दीवार को गिराने के लिए वहाँ पे यरीहो या न्यायों में किसके कहानी में? न्याय जो वो कितियन के समय नहीं कितियन उसमें तुर्ही है. मर्ची पड़ दी. हाँ सही है, ठीक है. तो तुर्ही, what does this trumpet symbolize? ये तुर्ही किस चीज का चिन्ह है? So trumpets
Many times trumpet is a sign of victory, as you told. कई बार जब युद्ध जीत जाता है, कोई खुशी का मौका होता है, तब तुरही फूका जाता है. And when there is, and what else? When there is alarm and alert, कोई खतरा आ रहा है, तब भी तुरही फूका जाता है. कोई दुश्मन के देश के लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तब जो वॉचमैन जो खड़ा है, जो सिपाही क्या है, सिक्योरिटी कर रहा है उधर, वो तुरही फूकता है सबको खतरा आ रहा है करके समझाने के लिए. इट इज ऑल्सो ए trumpets were also used in celebrations. So एक राजा प्रवेश कर रहा है तभी Celebrations for announcements. There were different purposes for, but for all these things, for victory, for alarm and alert, for celebrations, for announcements and all, different kinds of trumpets were used. Different kinds of trumpets and also different sounds were produced. जो तुरही विक्ट्री के लिए फूका जाता है, जिस टून में, जिस आवाज के साथ वो फूका जाता है, वो सेम नहीं है जब खतरा आते समय. समझ गए? तुरही का आवाज से पता चलता है ये किस चीज के लिए. So it will be sometimes the trumpet itself will be different. कुछ कई बार ये एक अवसर के लिए अलग अलग तुरही होते हैं कई बार, and the sound will be different, the noise will be different. Celebration, the trumpets and celebration will be giving a very happy tune, very pleasant noise. But when there is a danger or a war announcement, अभी युद्ध के लिए घोषणा हुआ, उसके लिए क्या है, उसके लिए जो तुरही फूका जाएगा उसका टून साउंड अलग है, जो सुन के लोग क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा. So the tunes of the trumpets also were different. So what kind of trumpet will be here in the hands of angels? What kind of trumpets, or what does this trumpets shows? जब ये 7 angels trumpets लेके खड़ा है, इनमें से कौन सा अर्थ चुनना है, किस चीज के लिए तुरही? Alert and alarm, danger. So the 7 trumpets in the hands of angels shows upcoming danger. Upcoming danger, judgment, judgment. It's a call for alert. Alert and alarm. It's also an announcement. घोषणा है परमेश्वर का, जजमेंट का. अभी विक्ट्री है इसमें, परमेश्वर का विक्ट्री है इसमें, दुनिया को न्याय करने में, पर वो दिखने की जरूरत नहीं, विक्ट्री भी इसके अंदर है. और ये सारे है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर धरती को न्याय कर रहे करके घोषणा हो रहा है, और दुनिया को अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए ये तुरही एक एक करके फूका जाता है.
when we take the 7 trumpets, out of that, the first 4 trumpets तो 7 तुरहियों को 3 भाग में बांट सकता है। पहला 4 तुरही धरती के ऊपर और नेचर के ऊपर, हमारा नेचर को क्या बोलते हैं? प्रकृति, जिसमें सब कुछ आता है, पानी भी, लैंड भी, सी भी, वाटर बॉडी, सब कुछ आता है। And the 5th and 6th seal is affecting the people. God's judgment is affecting the people. लोगों के ऊपर न्याय हो रहा है. And the last trumpet is blown. Blow means, तो ही फूकने के लिए क्या बोलते हैं? Blow trumpet, blowing trumpet. And the last trumpet is blown. Blown means it's past tense of blow. And the last trumpet is blown. There is a celebration, a singing in the heaven that kingdom God is reigning over all the earth. This is the division of the 7 trumpets. Now we will see some of the general features of these 7 trumpets. General features. जनरल फीचर्स मतलब कुछ उनका खासियत, जो 7 trumpets का कुछ सार्वजनिक जनरल फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट फीचर ये है, इट रिसेंबल्स विद द प्लेग्स ऑफ गॉड ऑन इजिप्ट। के साथ तुरही जब फूकते समय जो कुछ हो रहा है न्याय, वो किसके साथ मिलता जुलता है? इजिप्ट में परमेश्वर जो 10 विपत्तियां भेजा था, उनमें से कुछ विपत्तियों के साथ सिमिलैरिटी है। रिसेंबल्स मीन्स सिमिलर, रिसेंबलेंस ये नाउन है, RESEM। Resemblance means similarity. Similarity मतलब क्या है? एक जैसा। Resemblance means
It's a verb. It is a verb. The submerge means it is like, it is just like the plagues of God on Egypt. जब परमेश्वर इस्राएली लोगों के जब फरो ने when Pharaoh was oppressing, persecuting, and making the lives of Israelites like a life of slaves, and when he was oppressing them, God sent all these plagues on the. जब फरो ने परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, उनको गुलाम बनाया था, उनको बहुत सारी कठिनाइयों से दबा रहा था, तब उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? फरो के ऊपर न्याय करने के लिए ये 10 विपत्तियां। वैसे ही परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो सताव करने वाले इस दुनिया के ऊपर, इधर के अधिकारियों के ऊपर परमेश्वर न्याय भेज रहा है। दिस इज सिमिलर टू just like God's judgment on Pharaoh or Egypt when they oppressed the Israelites and rebelled against God, just like that God is just like God's judgment on Pharaoh when they oppressed the Israelites and rebelled against God. Here God is judging the oppressive and rebellious world which oppresses his people and rebels against him. जैसे परमेश्वर इजिप्ट के ऊपर, फरो के ऊपर, जब उन लोग अपने लोगों को गुलामी में रख रहे थे, सता रहे थे, समय जैसे उसने न्याय किया 10 विपत्तियों के साथ, उन विपत्तियों के साथ मिलता जुलता है ये 7 ट्रम्पेट्स। इधर क्या हो रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को सताने वाला और परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाला दुनिया को परमेश्वर न्याय कर रहा है। There is a similarity with what happened at Exodus. So this is a preparation for न्यू एक्सोडस। परमेश्वर का एक नया निर्गमन के लिए तैयारी हो रहा है।
when these 10 plagues happened in Egypt, it was a preparation for the new Exodus. It was a preparation for the Exodus. मिस्र के लोग उस गुलामी से, सताव से, दबाव से बाहर निकलने के लिए तैयारी हो रहा था 10 विपत्तियों के साथ. Like that, here also God is preparing His people for a new Exodus. Just like 10 plagues. Plagues means vipatti. परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक नया निर्गमन, इस दबाव से भरा हुआ, सताव से भरा हुआ दुष्ट दुनिया से नया निर्गमन, पुराना सृष्टि से नया सृष्टि की ओर एक निर्गमन. It is a God is preparing a new Exodus. From verse, this new Exodus is from the old creation to new creation. Exodus from old creation to the new. Understood? Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes. तो ये सब कुछ जनरल बातें हैं. ये 7 कॉम्प्लेक्स का कुछ खासियतों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. शायद एक एक ट्रम्पेट आज शायद हम नहीं देख पाएंगे, पर 7 ट्रम्पेट्स के बारे में कुछ जनरल बातें नोट करेंगे. Now post the video. बोले किसके साथ? आग और Mixed खून. तो वो जब होते हैं शायद ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई खून का ओला और खून और आग जैसे ओला और बारिश हो रहा है. कहाँ? धरती के ऊपर. तो इसके साथ 10 विपत्ति में कोई कनेक्शन है? Yes, sir. उधर भी ओला उधर भी हो रहा है. पानी रक्त में बदल जाता है. So there is similarity with the, ये नहीं इजिप्ट का 10 विपत्ति ऐसे ही होगा, नहीं. There are some similarities which make us remember the 10 plagues in Egypt. अभी जब ये हुआ, पूरा धरती के ऊपर हुआ, या कुछ ही भाग में असर पड़ा? कुछ भाग में से मतलब क्या लिखा है? पेड़ के एक तिहाई, एक तिहाई, 1/3 और a third और 1/3. 1/3 मतलब क्या है? तीसरा 1/3 मतलब
एक सर्कल को 3 भाग में बांट दिया, एक मतलब इतना इफेक्ट हुआ, इतना बच गए, समझ गए? 3 में 1। इसका मतलब ये नहीं क्या है, नाप कर क्या है इसी जगह में हो रहा है, नहीं। दिस शोज दैट दिस इज नॉट ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ये पूर्ण रूप में धरती को नाश नहीं। 1/3 shows this is not a complete destruction. Which brings the end. तो ये 1/3 या 1/3 पर ही असर हुआ। अगर वो बताया भी गया है उसमें घास और पेड़ के ऊपर क्या है, 1/3 में ही इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है ये तुरही फूकने से अंत नहीं आने वाला है। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू एंड विद 7 trumpets। ये नहीं 7 तुरही फूकने वाला है इसलिए पूरा धरती अभी खत्म होने वाला है। नो, दिस इज नॉट द एंड। ये एंड नहीं है, एक बाग के ऊपर ही असर पड़ रहा है, बाकी बच गया है। तो जितने भी तुरही अभी फूका जाएगा 1/3 के ऊपर ही क्या होगा, पूरा धरती को ऊपर प्रभाव नहीं होगा। पूरा धरती देखेगा पर क्या है प्रभाव, इसका असर पड़ेगा एक बाग में, 3 में 1 बाग में, 1/3 पर इसका असर पड़ेगा। So what is the second trumpet? Which verse? 8. 8 में क्या है? What happens when the second trumpet was blown? See, a big mountain was thrown into the sea. Great. Mountain with fire, right? Great mountain burning with fire. Fire was thrown into the sea. उसके वजह से क्या हो गया, समुद्र के बारे में, ठीक है। इधर अर्थ था, इधर क्या था, ये धरती के ऊपर था पहला वाला, ये समुद्र के ऊपर। A third of the sea became blood। से क्या प्रभाव हुआ, इधर 1/3 of the grass and trees burned। इधर क्या है, 1/3, 1/3, 1/3 of sea turned to blood। ये भी इजिप्ट का विपत्ति के साथ, पहला विपत्ति के साथ मिला जुला है। There it was the Nile which was turned into blood। जो नील नदी ब्लड में बदल दिया था। A third of the living creatures in the sea died and a third of the ships were destroyed। तो ये क्या क्या हुआ, 1/3 of the sea turned to blood, पानी 1/3 पानी लहू में बदल दिया। 1/3 of the life in the sea या मैराइन लाइफ मतलब समुद्र में जितना भी जीविया है तो मैराइन लाइफ बोल सकते हैं। लाइफ इन द सी डिस्ट्रॉयड। समुद्र में जो भी चीज है उसका जिसमें जान है 1/3 नाश किया गया। इस समुद्र में चलने वाला जहाज, शिप्स, 1/3 ships also were destroyed। This is the impact of the second trumpet।
तो इधर भी इजिप्ट के साथ ये चीज मिला जुला है, उधर भी नील नदी का मछलियां मरते हुए हम देखते हैं. देयर इज डेथ हैपनिंग, बट सिर्फ 1/3, नॉट द एंटायर वाटर बॉडी, ओनली द 1/3 ऑफ द वाटर बॉडीज. Sea is getting destroyed. And what is the third? Big star. Third one? 10 years. And verse में क्या है? Big star. The third angel blew his trumpet and a great star fell from heaven, blazing like a torch, springs of water. The name of the star is wormwood. A third of the water became wormwood. Many died from the water because it was made bitter. अभी star fallen from a great star लिखा है. स्टार का नाम क्या दिया गया है? वर्मवुड. ये एक प्रकार का पेड़ था जो बहुत कड़वा होता है, बिटर. जब ये सितारा, ये तारा, when the star fell from heaven like a blazing torch, it fell on a third of the river. ये कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? The rivers, yeah, water bodies of the land. वाटर बॉडीज ऑफ द लैंड मतलब ये सी था, समुद्र था. ये जो धरती पे जितना भी तालाब होगा या नदियां होगा, वो सारे चीजों के ऊपर गिरा ये तारा. कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे ये तारा शायद कोई रोमी सम्राट होगा, नीरो जैसे, जिसका गिरने से क्या हो गया, रिवर्स कड़वा हो गया. मतलब शायद देवी देवताओं को दिखाता है. नदी देवी देवताओं के रूप में मानते थे इजिप्ट में भी, अलग अलग जगहों में भी. हो सकता है करके कुछ लोग बोल रहा है. जो भी है, ये बहुत बड़ा एक नेता का गिरना का शायद एक सूची होगा. 7 सील्स में भी ऐसा कुछ है, स्टार्स फॉलिंग. तो शैतान के ताकत गिर रहा है या तिगारी गिर रहा है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. जो भी है, परमेश्वर का न्याय होगा. The star is falling. And the name of the star is wormwood. This is a bitter tree. तो असली जो वर्मवुड है, असली जो पेड़ है, उसमें जहर तो नहीं, कड़वा तो है पर जहर नहीं. पर इधर क्या हो रहा है? इट इज पॉइजनस टू. जहाँ ये तारा गिरा, ये वर्मवुड गिरा, तो पानी को क्या कर दिया? जहर बना दिया. A third of the waters became wormwood and many died from the water. जब ये पानी में गिरा, वो पानी में चीजें मर गया. Water became poisonous. Waters, ये धरती पर जो पानी के बारे में, रिवर्स को बाकी जो सोर्सेस. Bitter. This is the third number. The fourth one. Fourth one क्या है बताओ? Sun was struck and the Fourth angel. So 8 and to 11th are 8. Fourth one 8. 12 से लेकर 12. The fourth angel blew his trumpet
and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and the third of stars, so that a third of their light was darkened, a third of the day was kept from shining, and likewise the night. तो क्या हो रहा है? 1/3, एक तिहाई, 1/3 of the celestial bodies. Celestial bodies मतलब आकाश में जितना भी ज्योति देने वाला चीज है, celestial bodies. Celestial bodies were darkened, डार्क हो गए. उसमें सूर्य का एक तिहाई डार्क हो गया, चंद्र का एक तिहाई डार्क हो गया, तारों का एक तिहाई डार्क हो गया, दिन भी एक तिहाई डार्क हो गया. नाइट में जो थोड़ा सा रोशनी मिलते हैं उसमें से भी एक तिहाई ऑफ हो गया. So this also has resemblance with the 10 plagues. उधर भी 9 plague क्या था? पूरा अंधियारा. पर इधर पूरा अंधियारा नहीं. This is the plague of darkness. इधर एक तिहाई, तो एक तिहाई ही इफेक्ट हो रहा है. मतलब पूरा परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है, सबके ऊपर न्याय नहीं हो रहा है. एक तिहाई थोड़ा सा न्याय करके, दिस इज ए वार्निंग. परमेश्वर एक चेतावनी दे रहा है, एक सैंपल भेज रहा है. These are warning from God to the world. सारे विभूतियां क्या है? परमेश्वर का चेतावनी है दुनिया की. तो आज इतना ही हम देखेंगे, बाकी अगला क्लास में हम देखेंगे. Okay. So you understood what are these? What all I taught in today's class? I hope you all understood. Yes, sir. ये ऑन किया था बाकी? हाँ सर, ठीक है.